جشن داؤد محسن کے موقع پر محسن ادب ڈاکٹر داؤد محسن شخصیت و فن کتاب کا ڈاکٹر حافظ کرناٹک کے ہاتھوں اجرا عمل میں آنے کے بعد ڈاکٹر داؤد محسن کو تہنیت سے نواز کر اس کتاب پر اور ان کی شخصیت پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر آفاق عالم صدیقی HOD اردو زبیدہ ڈگری کالج شکاری پور علم و ادب کے معاملات مشہور شاعر ادیب ڈاکٹر حافظ کرناٹکی صاحب اسٹیج پر جناب افروز اہم شخصیات سامعین میں تشریف فرما علم و ادب کے آفتاب مہتاب اساتذہ کرام، خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان سے محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ زبان ہی ہے، زبان ہی کا رشتہ ہے جو ہمیں یہاں تک کھینچ کر لایا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ تو کالجوں کی کمی ہے، نہ اسکولوں کی کمی ہے، نہ پرنسپلوں کی کمی ہے، نہ ہیڈ ماسٹروں کی کمی ہے، نہ افسروں کی کمی ہے۔ ہم کسی پرنسپل کے لیے یہاں تک تشریف نہیں لائے، لا بھی نہیں سکتے۔ ہم یہاں آئے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہماری زبان سے محبت کرنے والا کوئی استاد، کوئی شاعر، کوئی ادیب کا پروگرام ہے، اس لیے آئے ہیں۔ یہ اہمیت ہے زبان کی۔ یہ زبان، جس زبان کے بارے میں عام خیال یہ ہے یہ زبان سیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، زندگی میں کوئی کامیابی، کوئی ترقی نہیں ملتی ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کا یہ سب سے بڑا موقع ہے۔ ہم جو اردو بول رہے ہیں، سچی بات یہ کہ ہمیں اردو نہیں آتی۔ وہ زبان، اردو زبان، شاعری یا نثر کا وہ حسن ہم نے آج تک نہیں جانا ہے۔ اس کے باوجود اس نامور زبان میں، اس غریب زبان میں ہم جیسے کئی لوگوں کو شاعر، ادیب اور پروفیسر ہونے کا اعزاز بخش دیا ہے۔ یہ جادو ہے اردو زبان کا۔ جسے اردو زبان ٹھیک سے نہیں آتی ہے اسے بھی معزز بنا دیتی ہے۔ یہ زبان ماں کی دعا کی طرح ہے، جس طرح ماں کی دعا نالائق بچوں کی قسمت سنوار دیتی ہے، اسی طرح یہ زبان نالائق سے نالائق آدمی کو بھی شاعر، ادیب، دانشور، پروفیسر اور نہ جانے کیا کیا بنا دیتی ہے، جب کہ اسے زبان تک نہیں آتی۔ یہ کمال ہے ہماری زبان کا، اس لیے ہم اپنی زبان پر جتنا فخر کریں اتنا کم ہے۔ چند اور باتیں عرض کروں گا۔ دنیا کی وہی قوم زیادہ سے زیادہ ترقی کرتی ہے جو اپنے شاعروں کی، اپنے ادیبوں کی، اپنی زبان کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ایک مثال میں یہاں پیش کر دیتا ہوں، زندہ مثال۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر حافظ کرناٹکی موجود ہے، 110 کتابوں کے مصنف، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ مل چکا ہے، لیکن ایک عام آدمی کی طرح نہایت انکساری اور خاکساری سے یہاں تشریف لائے۔ آپ یقین جانیے یہ مجلس کنڑ زبان کی ہوتی، کنڑا کا کوئی شاعر یا ادیب ہوتا جو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ حاصل کیا ہوا ہوتا اور وہاں CM بھی آتا، وہاں چھو کے جاتا، لیکن اردو میں یہ رواج ختم ہو گیا۔ اپنے شاعر اور ادیب کی عزت کرنے کا احساس ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ زبان سے محبت ہوگی تب اپنے زبان کے شاعر اور ادیب سے محبت ہوگی۔ زبان کا احترام آپ کے دل میں ہوگا تو اپنے شاعر اور ادیب کا احترام آپ کے دل میں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جب پوری قوم کرپٹ ہو جاتی ہے، جب کسی قوم کا ایک ایک فرد کرپشن میں ڈوب جاتا ہے، اسے پاک اور صاف کرنے کا کام فریضہ اور شاعر اور ادیب انجام دیتا ہے۔ وہی سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، وہ قوم کا ضمیر ہوتا ہے۔ جب وہ مر جائے تو سمجھو کہ قوم مر جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وہ واقعہ سنیے شاید اس سے یہ احساس ہو کہ ہم اپنے شاعر اور ادیب کی کتنی عزت کرتے ہیں یا ہمیں کتنی کرنی چاہیے۔ انگریزی کا ایک شاعر تھے ورڈز ورتھ، سبھی جانتے ہوں، بہت اچھے شاعر تھے، خود بہت اچھی نظمیں لکھتے تھے، لوگ انتظار کرتے تھے۔
कुछ दिनों तक उनकी नज़में शाये होना बंद हो गई। इंतजार कर करके लोग थक गए। 2 साल के बाद एक टीम गई कि आपकी नज़में बहुत दिनों से नहीं शाये हो रही, ऐसा क्या हो गया, आपने शायरी क्यों छोड़ दी? उन्होंने बताया कि मैं यहाँ बैठकर शायरी करता था, ये मेरी खिड़की है, खिड़की से देखता था एक खूबसूरत दरख्त है, उसे देखता था और उसे देख देख के नज़में लिखता था। हुकूमत ने 20 मंजिल की बिल्डिंग यहाँ बना दी है, पेड़ नजरों से ओझल हो गया है, पेड़ ही नजर नहीं आता है, नज़में लिखनी बंद है। दूसरे दिन हुकूमत ने बिल्डिंग जैसा उखाड़ के फेंक दी। बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमें हमारा शायर चाहिए जो हमारे लिए शायरी करे, जो हमारी ज़बान में अच्छी अच्छी तख्लीकात पेश करे। किसी समाज और किसी माशरे में शायर की ये अहमियत जब होती है तब वो कौम अमेरिका या बरतानिया की तरह तरक्की करती है। हमारे यहाँ एक और रवायत, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज जब सार्थक को दिया गया, फ्रांस का शायर था, उसने मेरे से साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारा इनाम इस लायक नहीं है कि मैं उसे कबूल करूं। मैं कबूल करूंगा, मालूम ये होगा कि मैं भी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हूं, उस सियासत या उस पॉलिटिक्स का हिस्सा हूं जो दुनिया में जुल्म करती है। पहले तुम अपना नजरिया बदलो, फिर मैं तुम्हारा अवार्ड कबूल करूंगा। हमारे यहाँ अपने यहाँ भी मिसाल है, आपको जानकर हैरत होगी कि अरुंधति राय को बुकर्स अवार्ड मिला। बुकर्स अवार्ड पहले हिंदुस्तान के है जिसको मिला। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो अपना बुकर्स अवार्ड वापस कर दिया। तुम जालिम हो, तुम इराकियों पर जुल्म करते हो, ऐसे जालिम हुकूमत से मैं अवार्ड ले ही नहीं सकती। अदब की जब ये अहमियत हो तब जाके कोई कौम तरक्की करती है, कोई समाज आगे बढ़ता है। जब आदमी को अपने अदीबों से, अपनी जबान से मोहब्बत न हो, खुद अदीबों में जो एक शान होती है, शान कच को लाही कहते हैं, अगर वो नहीं है वो अदीब कहलाने का हकदार नहीं। हमारे यहाँ एक नवाब गुजरे हैं, नवाब आसिफ उद्दौला, उनके बारे में मशहूर था कि जिसको न दे अल्लाह ताला उसको ठीक है आसिफ उद्दौला। उस आसिफ उद्दौला के दरबार को ठोकर मार दिया, मृत्यु की हुई, बार बार बुलाया लेकिन नहीं किया। जब शायर इस मियार का हो, इस स्टैंडर्ड का हो, तो हमारी मुर्दा कौम की जमीन में नई जिंदगी का एहसास पैदा होता है। फिर वो कौम जिंदगी की शाहराह पर हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ने लगती है। जब इल्म का मर्तबा, अदब का मर्तबा, उसकी कदर और कीमत का एहसास हमारे अंदर, आपके अंदर पैदा होगा, तो हम अपनी जबान की भी इज्जत करेंगे, अपने शायर अदीब की भी इज्जत करेंगे और फिर फख्र से उसे पेश भी करेंगे। ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं, जिधर नजर उठा कर देखिए। इल्म की कदर हमारे यहाँ कम हो गई, दूसरों की यहाँ कम नहीं हुई। दूसरी कौमों में आज भी इल्म की कदर और कीमत बहुत है। महासविता देवी को जब बंगाल का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया और गवर्नर के हाथ में अवार्ड देने का ऐलान किया गया, उसने साफ इनकार कर दिया। गवर्नर ने मेरी कौन सी किताब पढ़ी है, अगर उसने मेरी किताब ही नहीं पढ़ी है तो मैं उसके हाथ से क्यों अवार्ड दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा अवार्ड। कोई सब्जी बेचने वाला अगर उसने मेरी किताब पढ़ी है, वो मेरे नजर में गवर्नर से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, मैं उसके हाथों से अवार्ड लेना पसंद करूंगी, लेकिन इस गवर्नर, इस सीएम के हाथ से अवार्ड लेना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। ऐसे लोग दूसरी कौमों में क्यों पैदा होते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं होते? ये सोचने की बात है कि हमने दिल का ऐसा माहौल बना दिया, कि हमने ज़बान और अदब का इस तरह का माहौल बनाया कि हमारे इस तरह के अदीब, इस तरह के शायर, फनकार खुददारी की ताकत से मालामाल लोग पैदा नहीं होते हैं। हर शायर अदीब कुछ न कुछ संगी जरूर होता है, जो जिसके दिमाग में सनक न हो वो शायर, अदीब और फनकार नहीं होता। यही वजह है कि अच्छा से अच्छा, बड़ा से बड़ा शायर और अदीब और फनकार या तो नौकरी कर नहीं पाता है, और अगर नौकरी उसने कर ली, जिसने उसे बर्दाश्त किया उसका कमाल है। शायर अदीब पूरी तरह सेट नहीं होता, जो सिस्टम होता है वो पूरी तरह सेट नहीं करता है, वो कुछ न कुछ टेढ़ा होता है, कुछ न कुछ अक्खर होता है। उसे जो कबूल कर लेता है, जो इदारा, जो शख्सियत, वो बड़ी शख्सियत है। अगर सैफुल्लाह साहब ने 35 साल दाऊद मोहसिन को बर्दाश्त किया, ये उनकी कमाल, उनके सब्र का कमाल, ऐसा नहीं है। अगर मुझे कोई बर्दाश्त करना तो जाहिर सी बात है उनकी मोहब्बत या इल्म दोस्ती का कमाल है। कहते शायद अपनी बहरहाल कहीं न कहीं टेढ़ा होता है, बिल्कुल आम आदमी की तरह नॉर्मल होता नहीं है। उसकी टेढ़, उसके मिजाज की, तुलना मिजाजी हर वक्त कहीं न कहीं जाहिर होती रहती है।
ये इल्म में कदरदान लोग हैं तो इस तरह के लोगों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं हालांकि चूंकि ये बहुत अदबी या इल्मी किस्म की महफिल नहीं है, इसलिए बहुत संजीदा किस्म का इल्मी तबसरा मेरा ख्याल है कि मुनासिब भी नहीं। डॉक्टर दाऊद मोहसिन से मेरा तारुफ बराह रास्त अदब के जरिए नहीं बतवस्सुत डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी हुआ। शुरू में प्रोफेसर सैयद शाह मदार अकील साहब सागर भाई और डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने हाफिज कर्नाटकी साहब की कोई किताब छपी थी चमकते सितारे या कोई और, उन्होंने कहा कि ये किताब डॉक्टर दाऊद मोहसिन को दे आई। जाहिर सी बात है मेरे दिल में एक एहतराम पैदा हो गया, इतनी बड़ी शख्सियत अपनी किताब बराह रास्त किसी के हाथों भेज रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी शख्सियत भी बड़ी होगी, अहम होगी। कई बार 2 बार 3 बार इस तवज्जुह से मेरा उनका राब्ता हुआ, इस तरह हम एक दूसरे को समझने और जानने लगे। हर वो आदमी जिससे मोहब्बत करते हैं डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी है, जो उनके करीब रहते हैं, मैं भी उनका उसी तरह एहतराम करता हूँ, उसी तरह कदरदानी करता हूँ। ज़बान और अदब का बराह रास्त रिश्ता एक दूसरा होता है, एक पारिवारिक या बिरादरी वाला रिश्ता दूसरा होता है। इन तमाम रिश्तों में सबसे मजबूत रिश्ता होता है ज़बान का, अदब का। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, यहाँ जितना जश्न बरपा हुआ डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब के दोस्त अहवाल में जिस तरह उनकी इज्जत अफजाई की, उसमें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक चूक हुई। चूक ये हुई कि किताब का जिस किताब का इजरा हुआ, जिस किताब को इंजीनियर मोहम्मद आकिब ने या डॉक्टर आयशा अंजुम ने मुरतब किया, उनका एहसास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि दाऊद मोहसिन तो उर्दू के प्रोफेसर थे, उर्दू की नौकरी की है, उर्दू की रोजी रोटी खाए, लेकिन ये जो इंजीनियर साहब हैं इनके साहबजादे या इनकी जो बेटी है डॉक्टर साहब, उन्होंने उर्दू की रोजी रोटी तो खाई नहीं, उर्दू से आई हुई आमदनी से दूसरे तरह की तालीम हासिल की। उस नमक हलाली का सबूत पेश करते हुए इतनी खूबसूरत इतनी अहम किताब मुरतब की। उनका एहसास ज्यादा होना चाहिए था, उनकी हौसला अफजाई ज्यादा होनी चाहिए थी, उनकी वालदा की खिदमत का एतराफ ज्यादा होना चाहिए था। वो चाहती तो अपने बच्चों को मुमकिन है उनका जहन बदल देती कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें उर्दू पढ़ने से क्या लेना देना है, ये पढ़ो वो पढ़ो ये छोड़ो। लेकिन उन्होंने उर्दू पढ़ने के भी मौके दिए। एजाज के हकदार इनसे भी ज्यादा उनके बच्चे हैं, उनके घर वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपना फिट न होने के बावजूद इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक इस किताब की बात है, इस किताब के बारे में मेरा अपना जो तस्वुर है, किताब बहुत आम है। डॉक्टर दाऊद मोहसिन की अपनी खिदमत को समझना हो, उनकी जिंदगी को जानना हो, उनकी तहरीर और तकरीर की खूबियों से वाकिफियत हासिल करनी हो, उन पर कोई रिसर्च का काम करना हो, उसके लिए ये किताब सही मील की हैसियत रखती है। उसे पढ़े बगैर कोई आदमी उन पर कोई रिसर्च का काम नहीं कर सकेगा। वैसे मुझे ये भी मालूम है कि ये किताब ज्यादा से ज्यादा 1-2% लोग पढ़ेंगे। इस मजलिस में मौजूद मुझे पूरा यकीन है कि 3-4 लोगों के अलावा किसी ने किताब पढ़ी नहीं होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि बेशतर लोग पढ़ेंगे भी नहीं। इसलिए उस किताब को बहुत ज्यादा पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। बड़ा मैंने तबसरा लिखा है, वो फिर कभी काम आएगा। यही बड़ी बात है कि ज़बान वाला के नाम पर हम सब लोग यहाँ जमा हुए, अपनी जबान मातृ जबान की मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए हमने ये एहसास दिलाया कि हम एक ही खानदान के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही जबान बोलते हैं, एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह की जिंदगी जीते हैं, और एक ही तरह सब कुछ भूल कर आराम से सो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आइंदा हम अपनी जबान की, अपने शायरों की, अपने अदब तहरीर करने वाले लोगों की उस तरह कदर करेंगे जिस तरह अपनी माँ की कदर करते हैं, उसी तरह अपनी मातृ जबान की इज्जत करें, उसका एहतराम करें, उसमें काम करने वाले लोगों को इज्जत दें, एहतराम करें। इंशाअल्लाह तरक्की के रास्ते खुलेंगे और इंशाअल्लाह बहुत दूर तक जाएंगे। क्योंकि जिस दिन आपने जबान छोड़ दी, जिस दिन आपकी माँ ने आपके लिए दुआ देना छोड़ दिया, उस दिन आपकी जिंदगी खत्म। उसी तरह माँ के आशीर्वाद जैसी इस जबान को जिस दिन आपने छोड़ दिया, आपकी कौम भी खत्म हो जाएगी। इस बात का यकीन रखिए। इसलिए इस जबान को जिंदा रखने के लिए जितनी भी मुमकिन हो इखलास से मेहनत कीजिए, कोशिशें कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।